hello guys. Welcome back to my channel. This is Keshav, your friend, and I'm back with another video. So Guftagu is a new series on my channel. In Guftagu, we try to bring some amazing and unique CA journeys post the announcement of every results. So as the May 24 results were announced on 11th July 2024, so I've picked some unique and amazing CA journeys of successful chartered accountants of this term. And we will get to know their experiences, their strategies, their guidances, their achievements, and how they were able to do all this. In today's video, you will get to know about a chartered accountant who is CA Nikki Agarwal, and the unique part of her CA journey is that she scored just 29 marks in the Advanced Financial Management Paper 2 of CA Final, and she made the biggest turnaround that one can't even imagine of. From 29 in November 23 to 92 in May 2024. Yes, you heard it right. I was as much surprised as you are right now upon hearing this. But this is true. This is an amazing CA journey. The good part is that we had a discussion of over 30 minutes on just advanced financial management in this video. So you will get to see her introduction and then later her interview, where she has discussed her strategies, what changes she made, what were her weakness, and how to plan AFM from the very beginning. Yes, you heard it right. So if you are weak in AFM, or if you're so to plan this subject from the very beginning, as AFM is most probably the first paper that one takes classes for after entering CA finals. So this is the best video for you in that case. As I'm making such videos from some time now, so I think I can expect what I want from you as an audience, to give your love and support, like this video, to share this video with all the CA finalists and those students who are in inter and will be approaching CA finals. Do subscribe my channel because a lot of videos are coming up on the same Guftagu series, and you will love them, get inspired by them. And Hello everyone, I am Nikki Agarwal. I belong to Jahangirabad, which is in Bulandshahr, Uttar Pradesh. मैंने अभी CA क्वालिफाई किया है in May 2024 attempt, and in which I scored 92 marks in my CA final SFM exam, which is also now AFM, Advanced Financial Management. So we are a family of 5, where my father is a businessman, my mom is a homemaker, I have a younger brother and an elder sister. Apart from everything, I like to dance and I like to read books. That's all about me, and yes, do give it a watch and like the video. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to. सो मैं वेलकम करना चाहूँगा CA निकी अग्रवाल का, जिन्होंने इस बार May 24 टर्म में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट से एग्जाम्स क्रैक किए हैं, एंड इट इज़ माय ऑनर टू वेलकम हर. एंड निकी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये विश करना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली ऑन दिस बिग अचीवमेंट. CA एग्जाम्स को क्रैक करना एक बहुत बड़ा डील है और आपने उस चीज़ को अचीव किया. तो हाउ वाज दैट फीलिंग? Okay, hi Keshav, and thank you so much कि मतलब हाँ, achieving CA is altogether a dream and that is finally completed. तो everyone मतलब सब मेरे आसपास बहुत खुश है and सब लोग को बहुत proud भी feel हो रहा है, and I am also very proud. तो यही है अभी तो. So let's take you back to 11th July at around 10:15 AM in the morning. सब कोई anxious थे results को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, and I am sure that you must have a sleepless night before that 11th. तो फिर और आपका कैसा उस दिन पहले एक्सपीरियंस कैसा था, पहले रिजल्ट से पहले, और जब रिजल्ट्स आपने वो देखा कि फाइनली सक्सेसफुल हो गया, तो क्या रिएक्शन था आपका एंड आपके पूरे परिवार का? Okay, so
इस बार जैसे जब रिजल्ट आने वाला था, सो यस फॉर दिस टाइम मतलब इट हैपेंड टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे रात को नींद नहीं आई एक्चुअली, और मैं सुबह 4 बजे सोई थी। व्हेन माय फ़ोन बैटरी मतलब वो पूरा डेड हो गया, घर वाले बोल रहे हैं, उन लोगों बीच में उठ के बोल रहे हैं, "अरे तू अब तक सोई नहीं, सो जा" एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड फिर मैं सुबह जल्दी भी उठ गई कि यार रिजल्ट आ रहा है, एंड दिस वाज़ द फीलिंग, मतलब इतना ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद जब मतलब रिजल्ट आने था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समवेयर अराउंड 11 के आसपास आएगा रिजल्ट, 10 टू 11 या 10:30 टू 11, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी उसी अराउंड आया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बारी फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड रिजल्ट एक बारी मतलब देन उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो हम देखेंगे साथ में। क्योंकि इस बारी मैं घर पे भी थी, अदरवाइज़ मैं हमेशा पीजी में होती थी, तो मैं अकेले रिजल्ट देखती थी, तो इस बार फैमिली के साथ था। तो वो भी एक नई फीलिंग थी कि सब लोग मतलब साथ में थे। तो मैंने किया, मतलब मेरी दीदी ने बोला बाहर से, मतलब आई वाज़ इन द बाथरूम। सॉरी सॉरी टू कट यू, रिजल्ट कौन देखता है? खुद देखना पसंद करती हो या किसी फैमिली मेंबर के थ्रू बोलती हो नहीं, कि नहीं, मैं अपना रिजल्ट खुद ही देखना पसंद करती हूँ, मैं किसी से नहीं दिखाती, मतलब बहुत बहुत इससे सेंस मेरे को समझ में आ रहा है, निकी इज क्वाइट ब्रेव एंड करेजियस टू। हाँ, मैं एक्चुअली मतलब मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा रिजल्ट है, मैं पहले सबसे पहले खुद देखूँगी एंड फिर मैं बाकियों को बताऊँगी या फिर ऐसा, ठीक है। तो जब रिजल्ट मतलब आ गया था, लाइक अराउंड 10:15 अनाउंस हो गया था कि रिजल्ट आ गया। तो मुझे दीदी ने बताया कि अरे रिजल्ट आ गया, एंड आई वाज़ इन द बाथरूम एंड आई वाज़ लाइक ओह ओके, मैंने पहले मुझे आने दो, मैं आ जाऊँ, फिर हम रिजल्ट शांति से देखेंगे, अभी नहीं। देन मैं मतलब फ्रेशन अप होके सब करके आई मैं, फिर बैठे हम लोग साथ में, रिजल्ट खोला हम लोगों ने। एंड इस बार ना हमारे साथ सबके साथ क्या हुआ था कि आई गेस सभी रिलेट करेंगे इस चीज से कि हमेशा ना सीए रिजल्ट में आता था पास, लाइक 4 लेटर वर्ड PASS, ठीक है। एंड हम उसको देखते हैं भाई कहाँ है वो, ठीक है। उस पर लिखा है सक्सेसफुल, तो फॉर द फर्स्ट 10 to 15 सेकंड्स ना मैं ब्लैंक थी कि भाई रिजल्ट क्या, मतलब और एग्जैक्ट 200 स्कोर था मेरा, ठीक है। एंड ये भी था कि भाई 3 सब्जेक्ट हो गए, मतलब एग्जैक्ट 200 था तो समझ आ रहा था पास है, बट मेरे को लग रहा था कि यार नंबर तो अच्छे हैं, बट ये सिर्फ 200 क्यों आया मेरे एंड एवरीथिंग। देन एकदम से रियलिटी आई कि अच्छा आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, इसीलिए मतलब 3 सब्जेक्ट में है आपका 200 स्कोर एंड वैसा, एंड फिर सक्सेसफुल देखा तो फिर ओके फीलिंग आया कि हाँ ठीक है कि आप पास हो गए। एंड वो तो फिर उसके बाद मतलब हमने बोला, बताया, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को हक किया, दी को हक किया, सबको बताया। एंड फिर तो उस दिन तो मतलब फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, फोन बज रहा था पूरे टाइम, नॉन स्टॉप चल रहा था मतलब। या और एक और चीज या मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि उससे एक दिन पहले सुबह 4 बजे तक तूने फोन पे ऐसा क्या देख रहा था कि 4 बजे एंड बैटरी ड्रेन हो गई? या अरे एक्चुअली अभी वो सीएस पे रीसेंट सीरीज भी आई है, जमुना पार, तो अच्छा। मेरे फ्रेंड ने बोला था कि इसको एक बार रिजल्ट से पहले इसको देख लेना, एंड आई वाज लाइक ठीक है देख लूंगी, बट आई वाज इन्वॉल्वड कि कुछ और काम में या कुछ और काम में, तो वो मेरी सीरीज रह ही जा रही थी। तो उस टाइम पे देन इट गॉट इनटू माय माइंड कि चलो एक काम करते हैं, वो सीरीज देखते हैं कि वो सीरीज एक्चुअली में क्या है, और रिजल्ट कल आने वाला है एनीवे, तो चलो ठीक है सीरीज को ही देखते हैं। तो फिर मैंने वो सीरीज देखनी स्टार्ट की थी, वो सीरीज भी काफी अच्छी है, लाइक सीएस पे एक्चुअली में दैट इज वेरी नाइस। तो तो मैंने कैसा 4 लगा बजे उससे? तक वही किया था। मेरी पूरी तो नहीं हो पाई थी बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, बट अच्छा था, मतलब वो सीरीज भी ना प्रॉपर, वो बहुत अच्छी थी सीरीज जैसे उन्होंने बनाई है। अच्छा, तो पहले मैं ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, वो मैं ये जानना चाहूँगा कि सीए जर्नी कैसी रही, कितना टाइम लगा, कितने अटेम्प्ट्स लगे, किस लेवल पे, एंड वाज इट सेटिस्फाइंग इन द एंड कि नहीं? या सो मैंने अपनी सीए स्टार्ट की थी नवंबर 2018 में, तो मैंने पहली बार फाउंडेशन दिया ना, मेरा क्लियर हो गया था, एंड लाइक मेरे 400 में से 290 स्कोर आए थे, तो आई मिस्ड रैंक, बट इट वाज अ डिसेंट स्कोर, मतलब अच्छा था, लाइक आई वाज कि ओके नाइस, इतना अच्छा स्कोर आया तो उससे कॉन्फिडेंस तो आता है फॉर श्योर। तो ये था। एंड देन इंटर में आई अटेम्प्टेड बोथ ग्रुप, बट एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप नहीं हुआ, फिर अगेन आई अटेम्प्टेड द अदर ग्रुप, हो गया फिर, लेकिन उस बीच में हमारा कोविड भी आ गया था ना, तो कोविड की वजह से हमारा अटेम्प्ट भी डिले हो गया था, मतलब वो कैंसिल हो गया था मई वाला एंड डायरेक्टली नवंबर वाला था, तो वो सब। तो एंड देन स्टार्टेड आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप की 3 साल तो मतलब दो ज्यादा बेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर आपको इतना आपकी पूरी लाइफ ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपका पूरा चेंज हो जाता है, बहुत चीजें आप मतलब इमोशन, बहुत सारे इमोशन से आप उस 3 सालों में गुजरते हो, एंड वो ऐसे बहुत ही अलग फीलिंग होती है। सो वो 3 साल, एंड देन मेरे सीए फाइनल में भी मैंने 2 ग्रुप दिए एक बारी, मतलब एक ही बारी में, उसमें एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप नहीं हुआ, एंड देन नेक्स्ट एक ग्रुप दिया, वो हो गया। तो मेरे ऐसे अटेम्प्ट्स मतलब लगे, तो ठीक है कंप्लीटेड इन विद इन 6 इयर्स, बट यस सेटिस्फाइंग तो बहुत है, मतलब फाइनली जो सीए निकी अग्रवाल है जो बोल सकते हैं आप खुद को, तो दैट इज वेरी मच सेटिस्फाइंग। नाम के आगे सीए, मतलब कि यही है कि नाम के आगे सीए लग गया तो राइट, इससे सेटिस्फाइंग फीलिंग कुछ नहीं हो सकता और लाइफ। ट्रू तो ट्रू। एस्पिरेंट्स अगर ये देख रहा है तो उसको भी ये चीज से रिलेट कर पाएगा। और
तुमने ये बात की आर्टिकलशिप के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आर्टिकलशिप कहाँ से की तुमने, और उसका एक कोई अगर मेमोरेबल या फनी इंसिडेंट कोई याद हो जो तुम एक शेयर करना चाहती हो विद माय व्यूअर्स। श्योर। सो मैंने अपनी आर्टिकलशिप की थी ओपी बागला एंड कंपनी LLP, ये ओखला में है, ठीक है। और मैंने मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की थी, तो 1.5 साल मैंने ओपी बागला में किया था, एंड देन अनदर 1.5 साल मैं सोएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गई थी, विच इज इन गुड़गांव। सो या एंड एनी फनी इंसिडेंट इन माय आर्टिकलशिप, ऐसे तो बहुत सारे टू बी ऑनेस्ट। मतलब आर्टिकलशिप वाला पार्ट वाज खुद से एक रोलर कोस्टर होता है ना, कि एक रोलर कोस्टर राइड लाइक दिस एंड दिस, वैसा दैट इज ऑनेस्टली वेरी मच। तो उसमें मतलब स्टार्टिंग में तो व्हेन आई जॉइन अपनी फर्म, तो स्टार्टिंग में तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, लाइक आई जस्ट हैड, मेरी एक ही बंदे से बात होती थी पूरी फर्म में, एंड ऑलमोस्ट 3-4 महीने हम लोग ही आपस में बात करते थे, एंड वैसा देन धीरे धीरे करके फ्रेंड्स बने थे, एंड फिर और भी चीज़ें मतलब और भी एक्सपीरियंसेस डेवलप हुए, तो बहुत अच्छा। फनी इंसिडेंट मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा है अभी करेंटली, अगर मुझे याद आएगा तो आई विल श्योरली टेल लेटर ऑन इन दिस वीडियो तुम बता दो। या। तो सबसे पहले जो इस वीडियो का हाईलाइट है और जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स अट्रैक्ट हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उस क्वेश्चन पे आते हैं। आपका SFM का मार्क्स 92, दैट्स नॉट जस्ट बिग, इट्स रिमार्केबल। एंड ये इस लड़की ने कैसे अचीव किया है, बिकॉज इससे पहले वाले टर्म में शी स्कोर्ड 29 एंड एक, और उसके बाद 29 एंड May 24 में 92। तो ये 29 से 92 का जर्नी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कि हो सकता है कि कोई अगर 29 से फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके एक एग्जामिनेशन सिक्योर कर ले तो लगता है कि यार अच्छा काम किया है इसने, मतलब मेहनत की है। बट 29 को पूरा कंप्लीट एक ऊनो रिवर्सल जिसको कहते हैं, उसको 92 में कन्वर्ट कर दिया इसने, मतलब कंप्लीट रिवर्सल उस फिगर को। ये जानने के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हूँ, और आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी जो आगे इस वीडियो को देखेंगे वो भी ज़्यादा दिलचस्प होंगे ये जानने के लिए। तो निकी पहले स्टार्ट करो कि नवंबर 23 में क्या किया था जो 29 आया, क्योंकि बिकॉज उस टर्म का भी पेपर मैंने जितना भी रिव्यू सुना था कि सबने कहा था कि वो पेपर काफ़ी ईजी था। ओके, सो यस, नवंबर 23 में जब रिजल्ट आया था तो मेरा SFM में जस्ट 29 नंबर आया था, तो मैं मतलब शॉक हो गई थी। लाइक मुझे पता था कि मेरा पेपर बिगड़ा है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि समवेयर 40 तो आ ही जाएगी, मतलब एटलीस्ट मैं फेल नहीं होंगी, या फिर इतने मार्जिन से फेल नहीं होंगी कि लाइक समवेयर अराउंड 36-37 प्रॉब्ली। इतना ज़्यादा लो स्कोर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो व्हाट हैपेंड वाज लाइक कि स्टार्टिंग में जैसे SFM जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो ओके इन नवंबर 23 मतलब जैसे SFM में आया था, तो SFM की मैं स्टार्टिंग की कहानी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो SFM वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसकी मैंने कोचिंग ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एक अलग न्यू सब्जेक्ट, और एक वो होता है ना कि स्टॉक मार्केट में भी आप थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट होता है आपको, तो आपको ऐसा लगता है कि पहले एक बार इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है एंड कैसा है एंड एवरीथिंग। तो जब मैंने मतलब कोचिंग भी ली थी तो मैंने SFM को अच्छे से मतलब पढ़ा था, एंड आई एक्चुअली लाइक दिस सब्जेक्ट अ लॉट। बट दो कोचिंग के बाद मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी उतना, जैसे सब लोग करते हैं एवरीथिंग। तो मैंने भी अपनी जो कोचिंग थी, मतलब जो एक्चुअली में सेल्फ स्टडी थी, वो तो स्टार्ट की थी जब मुझे लीव्स मिली थी, और बिफोर ऑल्सो मतलब बिफोर गेटिंग लीव्स मैं कोशिश करती थी कि अपनी एटलीस्ट जो सारे लेक्चर्स हैं वो खत्म करें, ठीक है। तो हाँ, और मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने जून से ही अपनी SFM स्टार्ट की थी, मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया था SFM को, तो इट शोड कि भाई ये मुझे मतलब सब्जेक्ट पर्सनली बहुत पसंद है। तो एक ऐसा होता है ना कि आप इतना टाइम बिताते हो एक सब्जेक्ट के साथ, एक अटैचमेंट आई डोंट नो बट हो जाती है, मतलब एक अलग, तो एक अटैचमेंट मेरा हो जाती है। या ट्रू है ना। और एक ग्रुप 1 में मेरा SFM था, और ग्रुप 2 में मेरा ऐसा DT के साथ था, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट्स थे जो उसको मैंने बहुत टाइम दिया था। तो जब मतलब नवंबर 23 में व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मैंने किया, मतलब करा था मैंने रिवीजन, बट जो 1.5 डे होता है, मतलब मैं FR का, एक्चुअली FR का पेपर बहुत टफ आया था हमारा, मतलब नवंबर 23 के टाइम पे। तो या इट वाज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स पेपर, तो सब लोग ना उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इवन आफ्टर एवरीवन सेइंग कि भाई मत करो, जो हो गया हो जाएगा, देख लेंगे। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे माइंड में था, और जब मैं निकली भी थी एग्जाम हॉल से, आई थॉट कि भाई तब तक तो हमें नहीं पता था कि FR का पेपर ही टफ आया है, तो मेरे को था कि यार शिट, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, FR में पक्का मैं फेल हुआ एनीथिंग। बट इवेंचुअली मैं ट्राई कर रही थी कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो ठीक है। बट उस सब के बीच में ना मेरा जो वो 0.5 वाला डे होता है, वो पूरा फिर भी कहीं ना कहीं मैंने वेस्ट कर दिया था, ना चाहते हुए भी। इवन आफ्टर मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना जाऊँ, FR के बारे में ना सोचूँ और एनीथिंग। तो आई जस्ट हैड 1 डे इन माई हैंड, तो मैंने SFM का रिवीजन किया, और फिर वो आपको होता है कि बहुत क्विक रिवीजन करना होता है, तो मैं सारे चैप्टर्स भी कवर नहीं कर पाई थी, और
मतलब मैंने थियरी पोर्शन सुबह के लिए रख दिया था कि एग्जाम वाले डे जो होता है आपका, तो उसमें सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे, बट मेरे चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने इवेंचुअली थियरी पोर्शन को थोड़ा निगलेक्ट ही कर दिया काइंड ऑफ, मतलब वैसा। एंड नवंबर 23 का पेपर, मतलब एग्जाम हॉल में जब मैं बैठी थी, मैंने पेपर पढ़ा एंड इट वाज सो इजी। मतलब मेरा ऐसे था कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये क्वेश्चन मैंने सुबह सुबह देखा है, इसका ऐसे होगा, ठीक है। तो आई वाज हैप्पी कि ठीक है पेपर इजी आया है, मैं सॉल्व कर लूंगी, हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंड विद मी लेटर ऑन, जब हम पेपर स्टार्ट, वो 15 मिनट्स के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, जो अभी बताया था। बट जब बाद में क्या हुआ ना, कि जब मैंने पेपर स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, तो वन बाय वन, तो मैं, मेरे दिमाग से फॉर्मूलाज निकलते चले एंड मतलब आप क्या करने फॉर्मूला भूलने चली गई कि मतलब भूलने लग गई एग्जाम हॉल में? राइट, अच्छा। मतलब इट वाज कि भाई मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसका मतलब ऐसे कि यहाँ पे अंडर रूट आएगा या नहीं आएगा, या ये है, मतलब बहुत सिली वाले। प्रेशर में ये हो जाता है, ये सबके Exactly. साथ आई थिंक होता है ये चीज, बट हो जाता है। ट्रू। और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका नहीं आ रहा, बात का करता है। मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया, वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, एंड फिर मेरा पैनिक लेवल, मतलब इट रीच्ड हियर, एंड आई लाइक मुझे एग्जाम हॉल से निकलना है, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये पेपर। मतलब मुझे 1 घंटे में ऐसी फीलिंग आने लगी थी, एंड मुझे लग रहा था कि भाई मेरे को रोना है, बहुत जोर जोर से चीखना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। एंड ये सब पता है क्यों था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मतलब क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट था ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई हो गई थी उससे, तो वैसा। तो फिर उसके बाद मतलब घर आके लाइक एंड पूरे एग्जाम को आई वाज एबल टू अटेम्प्ट जस्ट 75 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 20 नंबर की तो थियरी थी एंड आई नेग्लेक्टेड थियरी, तो मैंने वो तो वैसे भी नहीं किया, ठीक है। और लाइक 70 to 75 नंबर का मैंने किया, जो प्रैक्टिकल पोर्शन किया, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि भाई मतलब कैसे हुआ। बट स्टिल आई वाज लाइक कि जो मैंने किया है उतना तो मैंने सही किया होगा, ठीक है। फिर भी एक ऐसा होता है ना आपके माइंड में कि ठीक है जितना किया है वैसा, तो ठीक है। पहले और फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था कि भाई तेरा पूरा हो गया था क्या, मुझे तो टाइम कम पड़ गया, एंड ही सेड कि हाँ मैं तो कंप्लीट कर लिया, मैंने तो 100 नंबर का पूरा किया है। एंड भाई मैं एकदम शॉक हो गई, एंड उससे बोला पेपर बहुत ईजी है। इसलिए आपका मोरल और डाउन हो गया होगा जब आपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन किया कि उसने कैसा किया, मेरा कैसा हुआ। या तो ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब मैं नहीं करती थी कंपैरिजन, सच में नहीं करती थी, बट उस टाइम पे एसएफएम में मैंने आई डोंट नो मैंने करा क्यों एंड क्या, बट वो मतलब किया कंपैरिजन। अब वो उसने बोला कि ये तो पूरा मतलब मैं तो पूरा करके आया हूँ, पेपर भी इजी आया था। फिर मैंने रिव्यूज पढ़े एंड पेपर एक्चुअली में इजी था, और मुझे लग भी रहा था कि पेपर इजी है, मुझसे नहीं हो पाया। फिर जस्ट आई न्यू कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, बट स्टिल आपको नेक्स्ट पेपर के लिए रेडी होना पड़ता है। तो मैंने ऑडिट का अपना नेक्स्ट पेपर था, ऑडिट भी एकदम अपनी मतलब वो भी नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट है, एटलीस्ट एसएफएम स्कोरिंग बोलते हैं लोग, बट ऑडिट तो एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल सब्जेक्ट है। तो हमने मतलब मैंने उसका किया, फिर ठीक है ऑडिट का। फिर जब रिजल्ट आया, मतलब कट टू द रिजल्ट डेट, एंड इन बिटवीन आल्सो मैं कंप्लीटली आई फॉरगॉट कि मैंने एसएफएम में क्या क्या मिस्टेक किया है, बट आई वाज स्टिल प्रेइंग कि ठीक है मतलब 40 तो आ ही जाएंगे मेरे, या भगवान जी आप संभाल लेना, एटलीस्ट 40 कर लेना या एनीथिंग, ठीक है। बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने इतना बुरा परफॉर्म किया होगा। तो ठीक है, और फिर रिजल्ट डे, कट टू द रिजल्ट डे, मैंने रिजल्ट चेक किया एंड आई वाज शॉक्ड कि एसएफएम में 29, मतलब इतने तो मेरे यूनिट टेस्ट में नहीं आते थे यार, इतने कम, लिटरली। मतलब दैट वाज द लोएस्ट स्कोर एवर ऑफ माय लाइफ, इन योर ऑन योर ऑफ योर पूरा एंटायर लाइफ अभी तक जितना भी आपने। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। हाँ मतलब नेवर हैव आई हैव रिसीव्ड सच अ लो स्कोर, बहुत ज्यादा लो। बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा ये लग रहा है मेरे को सुन के कि यही लड़की फिर जाके 92 भी लेके आई है। तो अब इसके मतलब अब आपने मतलब रिजल्ट डेट आया, यू स्कोर 29, तो अभी तक आपने वापस एसएफएम खोल के देखा नहीं था मतलब उससे पहले भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं अगली अटेम्प्ट, सॉरी मतलब एग्जैक्टली अगले अटेम्प्ट की तैयारी आपने फिर रिजल्ट्स डे के बाद से की थी? एग्जैक्टली, और उसमें भी मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरी आर्टिकलशिप का लास्ट डेट वाज 9 फरवरी 2024, ठीक है। और मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब उससे पहले मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, और इवन आफ्टर अगर मैंने शायद मुझे वैसे मतलब आई एम श्योर कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, बट अगर मैं बुक खोलती भी थी ना तो मैं एफआर की खोलती थी, बिकॉज एसएफएम से ना मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब कि यार 29 से ऊपर कैसे आया जाएगा मेरे को नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं सोच पाई थी। मैं अपने सर से भी बात कर रही थी, जो एंड वो भी बोलते कि निकी इट्स ओके भाई, हो जाता है, तो मतलब एसएफएम सच में स्कोरिंग है। एंड आई एम लाइक सर स्कोरिंग है तो हाउ कम आई स्कोर 29, मतलब इतना ज्यादा स्कोरिंग ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला कि हाँ तुमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा पढ़ाई। एंड मैं अपने मन में कह रही हूँ कि नहीं, मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया इस सब्जेक्ट को, कोई मतलब मैं कैसे समझाऊँ इस फीलिंग को, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब फील हुआ था फिर, और इनफैक्ट रिजल्ट में मैं एफआर में पास थी, मैं ऑडिट में पास थी, मतलब लाइक दीज आर द टू टफेस्ट सब्जेक्ट, मैं उनमें पास हूँ और मैं एसएफएम में फेल हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था या कि भाई ये क्या है, मतलब जिसमें उल्टा हो गया मेरे साथ, तो वैसा। देन इवेंचुअली लाइक हाँ मैंने अपनी पढ़ाई जो एक्चुअली में स्टार्ट की थी वो फेब से किया था,
और उसमें भी सबसे पहले मैंने एफआर को ही टाइम दिया था एंड आई थॉट, क्योंकि मैं एसएफएम से सच में मैं डरने लगी थी। मुझे ऐसा लगा था कि भाई मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई स्ट्रैटेजी बताओ मुझे कि मैं कैसे करूँ एक्चुअली में एसएफएम। तो ठीक है, ये हुआ था मेरे साथ। बट जब मैंने कमिंग टू May 24 की प्रिपरेशंस कि मैंने May 24 में कैसे स्टार्ट किया, तो फिर मैंने एफआर पहले किया, फिर एसएफएम को मैंने उठाया एंड आई वाज लाइक, पहले तो मोटिवेट किया मैंने अपने आप को कि ठीक है, जो हो गया, उसको आप पास में रखो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने मतलब ऐसा होता है ना कि ठीक है, एक वन बाय चैप्टर, लाइक वन बाय वन एक चैप्टर करके उठाता है, तो वैसा। तो फिर था कि चलो ठीक है, एंड आई रेफर्ड अजय अग्रवाल सर, या AI मतलब नवंबर 23 में भी मैंने उन्हीं का मटेरियल रेफर किया था, बट इट इज नॉट हिज फॉल्ट ऑब्वियसली। आपने क्लासेस किससे ली थी जो एसएफएम की पढ़ाई की थी, तो क्लासेस किससे ली थी आप? यार एक्चुअली मैंने क्लासेस संजय सर से ली थी, संजय सराफ सर से। एक सेकंड जस्ट निकी, ये भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ निकी से बिकॉज बहुत लोग नीचे कमेंट्स में फिर बाद में मेरे से पूछेंगे कि निकी ने किससे क्लासेस ली थी एंड ऑल, तो सब क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए वीडियो के दौरान कि हम लोग यहाँ पे ये कोई किसी टीचर का हम लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट की जर्नी में कैसा क्या रहा है वो जस्ट उसको बयां कर रही, तो ऐसा ही रहा। तो निकी यू कैन कंटिन्यू। एक्चुअली मैंने क्लासेस संजय सराफ सर से ली थी एंड नो डाउट मतलब मुझे उनकी भी टीचिंग स्टाइल बहुत ही पसंद थी, इसीलिए मैंने उनसे क्लासेस भी ली। बट मेरा क्या था ना कि मैं जैसे बता रही थी कि मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में उनकी क्लासेस ले ली थी, ठीक है। तो मुझे अपनी बुक रिवाइज कर मतलब अपडेटेड बुक चाहिए थी, तो मेरी जो बुक थी वो 2 साल पुरानी थी। तो मुझे ये था कि अपडेटेड कंटेंट चाहिए जिसमें मुझे लाइक अलग अलग एमटीपीज या आरटीपीज को रेफर ना करना पड़े। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड कि तू अजय अग्रवाल सर को भी रेफर कर सकती है, उनका मटेरियल अच्छा है एंड शी क्वालिफाइड इन May 23 अटेम्प्ट, तो उसने भी उनको ही रेफर किया था। तो उसने बोला कि तू ये कर सकती है रेफर, तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो ठीक है, कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट मतलब मेरे साथ क्या था कि पोर्टफोलियो और वो मैं कर चुकी थी, ठीक है, और फॉरेक्स वाला वो संजय सराफ सर से किया था, और ऐसे क्या मतलब थोड़ा मिस्टेक भी किया मैंने, डबल फैकल्टीज एंड ऑल। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना जो मतलब आपको पता होता है कि यार ये नहीं करना था। तो फिर May 24 में आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अब एक ही स्टिक रहूंगी। तो मुझे ये था कि ठीक है, अजय अग्रवाल सर की, क्योंकि बुक मैंने उनकी ऑलमोस्ट मतलब 90% कंटेंट मैंने उन्हीं का पढ़ा था, तो मैंने उनकी बुक अपडेटेड बुक मंगाई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। और उन्होंने मतलब फ्रेश रिवीजन वीडियोस भी अपलोड की थी, तो दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली। उनका जो था मतलब ऑनेस्टली कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जो मेरे को पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे चैप्टर्स है मेरे बिजनेस वैल्यूएशन वाला एक चैप्टर है हमारे में, एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला एक चैप्टर है हमारे एसएफएम में। तो ये वाले चैप्टर्स में मुझे काफी क्लैरिटी मिली थी उनके उससे, जो उनकी वीडियोस थी। हाँ जी। तो मतलब इट आल्सो हेल्प मी। तो मैंने सिर्फ मतलब एक था कि मेरे को ठीक है, इन्हीं का ही मटेरियल मतलब इन्हीं को ही वो होता है ना गुरु मान के चलना है, और बस किसी और को मतलब आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट, या मैं ये नहीं कहती भाई ये फैकल्टी अच्छा है या ये फैकल्टी से आप पढ़ो, बट मुझे उनकी फिर समझ आने लगा था। एक टीचिंग स्टाइल का होता है ना कि आपको किसका अच्छा लग रहा है, किसका समझ आ रहा है, कैसे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो वो था मेरे साथ। तो मैंने उनका मटेरियल एंड एवरीथिंग रेफर किया, और फिर मैंने क्या किया, वो ना एक चीज बोलते थे कि आप मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो करो, अगर आपको एक्चुअली में करना है तो कॉन्सेप्ट नोट्स फॉलो करो। तो कॉन्सेप्ट नोट्स मैं उनके फॉलो करती थी। मतलब मैंने अपने फर्स्ट रिवीजन मतलब मैंने ना एकदम फ्रेश रिवीजन स्टार्ट की थी फिर May 24 के लिए। मैंने भूल गई थी कि भाई ठीक है मैं फेल हुई हूँ या मेरे पहले पढ़ रहे थे, आई केप्ट इट ऑल असाइड। मैंने कहा ठीक है ये साइड में रखो, और अभी फिर लेट्स फोकस बिल्कुल स्टार्टिंग से कि इट इज अ स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने उनके मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स फिर से बनाए, जो होता है ना एक एक क्वेश्चन को मैंने फिर से कॉपी में सॉल्व किया। बिल्कुल मतलब उतना टाइम नहीं था मेरे पास, वो बिकॉज सी तब तक तो मेरी एफआर चली थी, एंड देन मार्च अप्रैल एंड मई में आपके एग्जाम्स, तो समवेयर वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इस बार इलेक्शंस भी थे, तो हमें लगा कि शिफ्ट हो जाएंगे क्या पता, बट मैं पोस्टपोन हो जाएंगी डेट्स, बट मैं उसको लेके नहीं चल रही थी, क्योंकि ऐसा है कि ठीक है होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, अभी उस चीज में नहीं कर सकते ना हम लोग, तो वैसा था। तो फिर मैंने उनका मतलब मैंने एक एक क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व किया, और साइड बाय साइड में स्टार्टिंग में मतलब जैसे सुबह के 3 घंटे ऑडिट को देने लगी थी, क्योंकि मेरे को था कि यार ऑडिट भी तो पढ़ना ही है ना फिर। तो फिर मेरे को याद है मुझे 20 to 25 डेज लग गए थे पूरा एसएफएम कंप्लीट करने में, क्योंकि एक एक हाथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। रिवीजन पहले क्या होता था कि रिवीजन वीडियोस देखा, फिर कॉन्सेप्ट नोट पढ़ा, फिर उसके बाद सॉल्व किया। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करती थी। एग्जैक्टली। तो मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे आपने सबको हाथ से लिख के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हाँ, क्योंकि मुझे ये नहीं था मतलब मेरे माइंड में क्लियर था मुझे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन देखना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर देख अगले रिवीजन में, तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए मैं ढूंढ रही हूँ भाई ये कहाँ पे ये कहाँ पे। मतलब अपने आप क्या करते हो कि जनरली रफ नोट्स में कर लेते हो या कैलकुलेटर पे कर लेते हो, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ भी, तो आई वांटेड कि भाई मेरे पास एक ईज हो
कि अगर मेरे को अभी इस क्वेश्चन को रेफर कर रहा है तो मुझे पता है कि वो इस कॉपी में ढूंढूंगी मैं, मेरे को मिल जाएगा सॉल्व, और वो मैंने सॉल्व किया है तो एटलीस्ट एक होता है ना जब आप आपकी मसल मेमोरी में वो हो जाता है, सेव हो जाता है, तो वो कंटेंट। फिर उसके बाद मैंने फिर सेकंड थर्ड रिवीजन एक्चुअली मतलब मैंने टोटल 3 रिवीजन करने का ट्राई किया था, बट अच्छा। थर्ड रिवीजन तो बहुत ही मतलब करनी पड़ी थी मुझे क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अच्छा। सिर्फ मेरे पास अप्रैल थी, तो सेकंड एंड थर्ड रिवीजन टोटल अप्रैल में, और 3 सब्जेक्ट्स आपके करने। हम्म। तो ये था कि ठीक है सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में इट हेल्प्ड अ लॉट वैसे देखा जाए तो। तो एक निकी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आपने सेकंड और थर्ड रिवीजन जो किया अपना एएफएम का, तो उसमें आपने क्या किया? बिकॉज आपने अपना फर्स्ट रिवीजन बता दिया कि आपने कैसे किया था, वाचिंग अजय अग्रवाल सर की रिवीजन वीडियोस, उनके फिर कॉन्सेप्ट नोट्स को रीड किया आपने, और उसके बाद फिर आप हर क्वेश्चन को एक कॉपी में सॉल्व करती थी लिख के, एंड उसके बाद अब सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में आपने क्या किया? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एएफएम के थ्योरी को कैसे हैंडल किया? ओके, सो आंसरिंग योर पहले जो थियरी वाला पोर्शन है, ठीक है, तो थियरी वाले पोर्शन में इस बार आई वाज क्लियर कि मेरे को नेग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक मैं ऑलरेडी कर चुकी थी नवंबर में, तो मुझे पता था कि मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। तो व्हाट हैपेंड विद मी ना कि आई ट्रस्टेड अजय सर जो वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने अगर बोला था कि आप 4 मेन चैप्टर्स हैं कि 4 या 5, इनफैक्ट इट इज नॉट अबाउट ट्रस्टिंग हिम ओनली, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे थे कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आपके इसमें, ठीक है, तो या तो आप प्रीवियस पेपर्स भी रेफर करते हो ना, तो मैंने एक्चुअली में देखा था कि भाई नहीं आते, बाकी जो चैप्टर्स है उसमें से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 8 नंबर का आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका आएगा उसमें से मतलब उतना। तो मैंने वो 4 या 5 चैप्टर्स जो सर ने बताए थे, मैंने बस उन्हीं को उन पे फोकस किया था, और मैं उसको करती थी, मतलब रट्टा लगाती थी, या जो कीवर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली कीवर्ड्स का रट्टाफिकेशन, नॉट कि पूरा रट रहे हो, बट कीवर्ड्स वाला किया था मैंने। तो उसके बाद ही मतलब हाँ, तो थियरी वाला भी इनफैक्ट मैंने 3 ट्राई किया था कि मैं 2 से 3 बार उसको भी एक बार पढ़ लूँ एटलीस्ट, मतलब ये नहीं था कि भाई पूरा रट्टाफिकेशन ही हो रहा है, बट एक्सप्लेन मतलब ऐसे अपने माइंड पे समझ के उसको करती थी। बट ये होता है कि कीवर्ड चाहिए होता है आईसीआई को, तो कीवर्ड्स को मतलब ध्यान रखने ही पड़ेंगे, तो मेरा था कि कीवर्ड्स हम करें, कीवर्ड्स मेरे को करने हैं, बट थ्योरी आपने कहाँ से पढ़ा था? मतलब जो कॉन्सेप्ट नोट्स है सर के, उसी में सर बैक साइड में थियरी थी, राइट। अच्छा, तो आपने मैंने आईसीआईएसएम को रेफर नहीं किया फॉर एनीथिंग? नहीं, एक्चुअली इस बार ही मैंने आईसीआईएसएम को रेफर नहीं किया था। अच्छा, मतलब ये मैं व्यूअर्स को बता दूं, एक और एक हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे निकी ने दिया है हम लोग को कि इवन आप अगर आईसीआई का मॉड्यूल को नेग्लेक्ट करो तो भी आप एसएफएम में या एएफएम में जो भी उसको बोलिए 92 स्कोर कर सकते हो। राइट, फॉर श्योर। मतलब मेरे साथ ऐसा था कि जैसे मैंने इंटर के टाइम पे तो इनफैक्ट एक बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए रेफर किया भी था, बट फाइनल्स में मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल को नहीं रेफर किया, एक्सेप्ट फॉर आपका इकोनॉमिक लॉ एक हमारा सब्जेक्ट होता था, दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसके लिए बस रेफर किया था ग्रुप 2 में, क्योंकि वो आपको लेके जानी पड़ती है एनीवे, बट मैंने किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं रेफर किया। इट इज लाइक ट्रस्ट, आपको ना एक ट्रस्ट होना चाहिए फैकल्टी पे, मतलब, और मुझे था, मतलब एटलीस्ट मैंने सोच के रखा था कि मैं ट्रस्ट करके चलूंगी, क्योंकि ये गलती मैं नवंबर 23 में कर चुकी थी, तो लाइक मेरे को नहीं करना ये गलती दोबारा, तो इसीलिए तो मैंने नहीं स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी रेफर नहीं किया था। तो And- सेकंड और तो सेकंड और थर्ड रिवीजन आपने कैसे किया एसएफएम का? सेकंड एंड थर्ड डिवीजन वाज, उसको मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं फर्स्ट डिवीजन में 20 to 25 डेज दे चुकी थी, बट वो 20 to 25 डेज में ना आई इंश्योर कि जो मेरे को कॉन्सेप्ट है, मैं रट नहीं रही किसी भी कॉन्सेप्ट को, मैं लॉजिकल समझ रही हूँ, जो कहता था कि एक समझ के आप कर रहे हो, अगर आप वैसे करोगे ऑनेस्टली बहुत हेल्प करेगा, आगे चल के भी बहुत हेल्प करता है। तो जो नेक्स्ट रिवीजन से मैं उनको क्विक कर पाई थी, तो मेरा जो टाइम था रिवीजन टाइम वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था सेकंड रिवीजन, लाइक मेरे सेकंड रिवीजन में आई गेस मैक्स टू मैक्स 10 दिन दिए थे। अच्छा, हाँ, कि 10 दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो आई गेस 10-11 चैप्टर्स हैं अपने, और 10 दिन ही मैंने दिए थे, तो मैंने एक चैप्टर को वैसा करके एंड पर डे वन चैप्टर, या और ये शायद मे बी 15 चैप्टर्स है, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, 14 to 15 चैप्टर्स है अपने, ठीक है, और उनको ऐसा था कि जैसे कुछ तो बहुत छोटे चैप्टर्स थे इनफैक्ट, तो उसमें था, और मैं कोशिश करती थी कि थियरी में उसके साथ साथ मतलब एटलीस्ट या तो नाइट में कर लूँ, एटलीस्ट 1-2 घंटा तो दो आप थियरी को, आप पूरे दिन प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वैसा। और फिर थर्ड रिवीजन में मैंने सिर्फ 5 दिन के आसपास दिए थे, 5 या 6, ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, डेज ही नहीं बचे थे एक्चुअली, तो मैं दे भी नहीं सकती थी इतने सारे ज़्यादा दिन, तो मैंने इतना दिया। और फिर उसमें मतलब क्या होता है ना कि आप मार्क करके चलते हो क्वेश्चंस, जब फर्स्ट रिवीजन करते हो तो आप क्वेश्चन मार्क करके चलते हो, तो मेरा यही रहता था कि मैं क्वेश्चन मार्क करके चलूं, अगर एकदम सेम क्वेश्चन है ना तो उसमें मैं लिखती थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट रिवीजन में ना फिर भी एक डाउट रहता है कि यार ये क्वेश्चन देख लेता है,
ठीक है, कि इसमें क्या था। तो मैंने इस रिवीजन में क्या किया, इस में आई इंश्योर्ड कि मैं उस पे लिख के चलूं कि भाई सेम एज दिस क्वेश्चन, सो दैट मैं 1% भी अपना टाइम वेस्ट ना करूं उस सेम क्वेश्चन को देखने क्वेश्चन में। को क्योंकि आई नो भाई, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें समवेयर अराउंड 60-70 क्वेश्चन है। इनफैक्ट मतलब इवन आफ्टर अजय सर का मटेरियल क्या है कि वो वेरी कंसाइज है, तो वो क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो उतना नहीं डालते, बट एलिमिनेट हो स्टिल जाता है। बट स्टिल उसमें तब भी 60 to 70 क्वेश्चन है, तो आपको उसको रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना। 60 to 70 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते एकदम लास्ट में, तो एटलीस्ट उनको 20 तो लेके आओ। तो मैं उसमें, और फिर अगर कुछ हल्का सा पॉइंट होता था, जैसे कि इसमें ये वाला पॉइंट अलग है, बीटा का पॉइंट अलग है हल्का सा, तो मैं उसको हाईलाइट कर देती थी कि सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मुझे इस क्वेश्चन को रेफर करना है, पूरा क्वेश्चन मेरे को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस सेव्ड माय टाइम अ लॉट। तो इसीलिए फिर ये सब मेरा होता था। और हाँ, मतलब क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने मार्क करके चले थे। तो सेकंड रिवीजन में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था कि ठीक है, सेकंड रिवीजन के बाद मेरे को ये समझ आ गया ये क्वेश्चन अब मेरे को इजी लग रहा है, तो मैं उसको फिर से इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट से रिमूव कर देती थी, और वैसा, जिससे कि थर्ड रिवीजन में मेरे को और क्वेश्चन कम हो जाए मेरे पास, और मेन क्वेश्चंस। और अजय सर ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट देते थे, लेकिन वो एंड मोमेंट पे थोड़ा देते हैं, ठीक है, जब आपका 1 महीना बचता है या एनीथिंग। तो मैंने बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रेफर कर लिया था कि मैंने वो मार्क करके रखे या नहीं कर रखे, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किए थे। तो ऐसा ना हो कि एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो मुझे इजी लगे और फिर मैंने इसीलिए उसको मार्क करके ना रखा हो। तो मैं बस आई मेड श्योर कि ये भी एक हो। तो ये सब कंपेयर कर देती थी अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट से उनका इंपॉर्टेंट लिस्ट जो सर ने दिया। हाँ, थोड़ा मतलब एटलीस्ट ये रहेगा कि हम जैसे कुछ आपका क्या होता है, आप वो क्वेश्चन मार्क करते हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है। तो और सर का क्या था, सर शायद कुछ एनालिसिस करके, पता नहीं सर क्या कैसे एनालाइज करता है, बट वो एनालिसिस करके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो देता है। तो मेरा ये था कि एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा है कि नहीं रखा है, तो वो था। तो सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपने भी कुछ कोई क्वेश्चन फिर वापस लिख के ट्राई किया था या बाकी सब ऑडिट किया था? मैंने सेकंड क्वेश्चन में ट्राई किया, सॉरी सेकंड रिवीजन में ट्राई किया था, थोड़ा सा लिख के देखना, स्पेशली जैसे फॉरेक्स वाले क्वेश्चंस है। फॉरेक्स वाले क्वेश्चंस में आपको करेंसी का थोड़ा वो हो जाता है कि, और कुछ क्वेश्चंस मतलब लिख के देखती थी, बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रिवीजन को बहुत अच्छे से कर लो ना, फिर सेकंड रिवीजन उतना टफ नहीं लगता, ये मेरा मानना है। तो सेकंड रिवीजन में ड्रास्टिकली एज आई सेड कि रिड्यूस हो गई थी मेहनत भी, मतलब टाइम भी, और क्योंकि आपके मतलब फर्स्ट रिवीजन में आपने उतना इंश्योर किया कि अच्छे से कर रहे हो आप, तो ये सब। और थर्ड डिवीजन में तो बहुत ही ज्यादा कम लिख के देखा था मैंने। मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि अगर मेरे से कोई ऐसा हो रहा है कि कैलकुलेटर पे नहीं हो रहा है तो मैं तब लिख के देखती थी। बट इन बिटवीन आई आल्सो अटेम्प्ट इन मॉक टेस्ट पेपर। मतलब मैं इंटर तक व्हाट हैपेंड विद मी वाज, मैंने एक भी मॉक नहीं किया था इंटर के, लाइक फाउंडेशन में भी नहीं, इंटर में भी नहीं, ठीक है। बट फाइनल्स में आई फेल्ट लाइक कि मैं मॉक देती हूँ, लाइक नवंबर 23 की अलग स्टोरी है, बट May 24 में ना व्हाट हैपेंड कि मेरे को ये था कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं क्या सोच रही थी कि एसएफएम में और एफआर में आई वांट एग्जेम्पशन एटलीस्ट, और ऑडिट में भी अपने को 50 पार तो मतलब ऐसे कि चाहिए था, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट था कि 60 तो मुझे एटलीस्ट चाहिए कि एग्जेम्पशन चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में। तो मैंने वैसे ही किया कि मैंने ट्राई किया कि एक तो मॉक टेस्ट दूं, तो मैंने आईसीआई का मॉक टेस्ट उठाया। इवन सर बोलते थे कि क्या कहते हैं आप मत उठाओ, उनका कॉपी पेस्ट होता है, बट जैसे थर्ड डिवीजन में आपने बिल्कुल भी लिख के नहीं देखा, ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट से क्या हुआ, आपने थोड़ा लिखा तो एटलीस्ट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और जो सब बोलते हैं एग्जाम में मतलब बैठना पड़ता है 3 घंटे, वो भी हो जाता है। और इसमें मेरा एक फनी इंसिडेंट है कि मैं एक अटेम्प्ट करी थी, लाइक एक मॉक टेस्ट पेपर, तो मैं अटेम्प्ट करने बैठी और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया था, एंड मैं टाइमर स्टार्ट करके आई स्लेप्ट, लाइक मैं सो गई। मतलब 1 घंटा मैंने कहा ठीक है बाद में करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं सो गई उसके बाद। और फिर मैं उठी 1 घंटे में, एंड फिर जल्दी ओके अब टेस्ट देते हैं, पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे मुझे। और फिर मैंने ये किया कि नहीं भाई, अगर पूरे 3 घंटे तू सो गई है, इट इज बिकॉज ऑफ यू, तेरा लॉस है उसमें। तो इट्स लाइक ऐसे सोच कि तेरे पास टाइम रिड्यूस हो गया, तो 2 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर। तो मैंने 2 घंटे में मैं क्वेश्चन देख रही थी। अब क्वेश्चन पेपर क्या था कि भाई ठीक है, आईसीआई जैसे वही कि आईसीआई के क्वेश्चंस वही होते हैं सेम, तो पता चल रहा था कि भाई ये क्वेश्चन आपने बुक में देखा है, ये बुक में देखा है, तो कर रहे। एंड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं कि ये क्वेश्चन मतलब तो बुक में था, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इट वाज लाइक दैट फॉर मी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं, मतलब मैंने अटेम्प्ट किया लिखने का किया, बट वरना मेरे माइंड में क्या था कि भाई ठीक है आता तो है, करा तो है सॉल्व, क्या जरूरत है लिखने की। बट इवेंचुअली अपने आप को बोला कि नहीं निकी, तुमको लिखना है, तुम लिखो, एक लिख के देखो। तो मैंने उसको लिखा, और फिर जब मैंने अपने आप मतलब सेल्फ इवैल्यूएट किया था मैंने, तो मैंने इवैल्यूएट किया। एक तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में फिर से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, मैं सिर्फ 70 नंबर का अटेम्प्ट किया था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 70 में से चलो सारे क्वेश्चन बुक के ही तो थे, तो भाई 60 से ऊपर तो आ जाने चाहिए, ठीक है, एक होता है 30-50 से ऊपर आ जाने चाहिए। और मैंने इवैल्यूएट किया, मेरे बने 40 अराउंड। मैंने कहा नाइस स्कोर, डिसेंट स्कोर है, बट 40 हो मतलब और भी नंबर ला सकते हो जब सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं तो।
व्हाई हैपनिंग, तुम इतना ज्यादा क्यों कर रहे तो आपने मॉक में सेल्फ इवैल्यूएट किया एंड योर स्कोर वाज बिटवीन 40 समथिंग हो? ऐसे। या एग्जैक्टली, और मतलब ये एग्जाम के कितने दिन पहले आपने मॉक दिया था? ये करीब 15 दिन पहले। 15 दिन पहले 40 में स्कोर था एंड इन एग्जाम हॉल शी स्कोर्ड 92। देखिए हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, मेरे को ये था कि भाई 70, अगर मेरा फिर उस टाइम माइंडसेट क्या था कि भाई तूने पूरा पेपर देखा हुआ है, ठीक है, जब तुम्हें पता है कि पूरा पेपर बुक में से ही है, तो एटलीस्ट इसमें तो अगर तुमने 70 का भी अटेम्प्ट किया तो इसमें तो आपको पूरे मिलने चाहिए थे ना, एटलीस्ट 70 में से, इफ नॉट 70 तो एटलीस्ट 60 के ऊपर तो लाओ, या 55 के ऊपर तो लाओ, अगर पूरी बुक से ही है सब कुछ और आपने देखा हुआ है। तो देन आई गॉट माय, मतलब एकदम मिस्टेक मुझे पता चली कि भाई अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हाँ एंड ये सब, और फिर थोड़ा एमसीक्यूज भी आ गए थे हमारे, तो एमसीक्यूज में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, तो ये सब था। तो फिर मेरे को इम्प्रूवमेंट मतलब समझ आया कि कहाँ पे कर सकती हूँ मैं, तो फिर आई डिड दैट एज वेल। तो उसके बाद मैंने थर्ड रिवीजन मतलब इम्पैक्ट किया था, मतलब सेकंड के बाद ही मैंने इवैल्यूएट किया था अपने आप को। तो सेकंड के बाद आपने मॉक दिया, इवैल्यूएट किया अपने आप को, आपने निकाल लिया कि मेरी खामियां कहाँ पे, मेरे वीकनेस कहाँ पे है, एंड उस एरियाज पे वापस थर्ड रिवीजन में आपने लेके इम्प्रूव कर लिया वो सब चीज को। राइट। तो फिर ये यहाँ तक आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट एंड आपका एएफएम आपका डन था आपके साइड से बिफोर एग्जाम। हाँ एग्जैक्टली। आप एग्जाम के 1.5 डेज में मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या कब आपने, अगर कुछ आपने कोई स्ट्रेटजी पहले से बना रखी थी 1.5 डेज की, एंड फिर वो एक्चुअल में आपने 1.5 डेज में कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर आपको वो 3 घंटा एग्जाम हॉल का सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए हम लोग को, कैसे आपने 15 मिनट्स को यूटिलाइज किया, फिर कैसे 3 घंटा आपने एग्जाम दिया। ओके, सो या वो जो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी थी वो मैंने स्टार्टिंग से फॉर्मुलेट करके रखी थी, मतलब मैं कोशिश कर रही थी मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँ अपने माइंड में कौन सी, मुझे 1.5 डे में ऐसे प्लान करना है या वैसे प्लान करना है। तो जो क्वेश्चन मार्क करते थे स्टार्टिंग में वो तो 1.5 डे में फॉर श्योर हमें देखना ही थी कि 1.5 डे में आप किस क्वेश्चन को देख के जाना चाहोगे, किसको नहीं देख के जाना चाहोगे, दैट वाज वन थिंग। एंड सेकेंडली जब मतलब व्हाट आई इंश्योर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की वाज, जो मैंने नवंबर 23 में मिस्टेक की थी वो मैं इसमें ना करूँ, मई 24 में ना करूँ। लाइक मैंने नवंबर 23 में जो आई सेड कि मैं एफआर का पेपर कैसा भी गया डिस्कस कर लिया था, मतलब उसके टफ एंड ऑल, तो आई इंश्योर कि भाई इस अटेम्प्ट में मुझे नहीं करना था ये सब चीज। तो एफआर, हाँ एग्जैक्टली, यस। तो हम लोग आते भी थे, इनफैक्ट एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे सेंटर पे एक साथ, तो हम लोग आते थे तो हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करते थे, मतलब हम कोशिश करते थे कि बिल्कुल भी डिस्कशन ना ही हो, बस ऐसे नॉर्मली कि हो गया, हाँ हो गया, नहीं हुआ वैसा ऐसा, मतलब नॉर्मल होता था, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और जो 45 मिनट्स की होती थी, या फिर ये स्ट्रैटेजी हो जाती थी बातें करने के लिए कि भाई एसएफएम का कैसे प्लान किया, ठीक है। तो मई 24 में वन थिंग दैट आई मेड क्लियर कि मुझे कौन से चैप्टर्स स्टार्टिंग में उठाने, कि 0.5 डेज में मैं कौन से चैप्टर उठाऊं और फिर नेक्स्ट डेज में कौन से चैप्टर उठाऊं, जिससे मेरा एटलीस्ट 100% रिवीजन कंप्लीट हो पाए, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कि, सॉरी टू कट यू, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने 0.5 डेज में कौन सा चैप्टर्स उठाया था, अगर आपको याद हो बाय चांस की से करके। या तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट आई इंश्योर्ड कि 4 से 5 चार चैप्टर मैंने इंश्योर करके, मतलब था कि 4 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने हैं। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं एग्जाम देके, तो ये था कि ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि 7 साढ़े 7 से मैं पढ़ने बैठना है मुझे, बट इवेंचुअली वो 8 बज गए थे या, ठीक है। तो उसमें भी था कि 4 चैप्टर आपको करने मुझे करने हैं, मतलब क्योंकि अगर कंप्लीट करना है रिविजन तो वन वाज म्यूचुअल फंड, आई थिंक डेरिवेटिव, जो मैंने ये दोनों चैप्टर तो स्टार्टिंग में कंप्लीट किए थे। आई गेस IRRM का एक चैप्टर है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 शायद मैंने 4 का टारगेट किया था, आई गेस मेरे 3 ही हो पाए थे, वैसा था, बट स्टिल आई वाज सैटिस्फाइड, क्योंकि ये सोच के कि भाई ठीक है नवंबर से तो बेटर है, जो है नवंबर से बेटर है, ठीक है। और मैं ना सर के अकॉर्डिंग फिर बीच में क्या था, बिल्कुल सोने से पहले मतलब सर मैराथन लेता है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं मैराथन में सर ने क्या बोला है सोने से पहले। तो 2x में मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में जो भी तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंगली मैं करा, मैंने कहा ठीक है। चैप्टर्स तो मैंने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से किए थे, जैसे सर ने अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल इक्विटी वैल्यूएशन वाला, मैंने अपना म्यूचुअल फंड करना था वो मुझे पता था, मैंने सर के हिसाब से नहीं किया था, बट हाँ आई इंश्योर्ड कि मतलब मैं थोड़ा बहुत सर की गाइडेंस भी देखती रहूं, तो ऐसा था। और फिर जैसे मैंने कंप्लीट किया नेक्स्ट डे पूरा रिवीजन, और थ्योरी ऑब्वियसली नेक्स्ट डे के लिए मतलब उतना टाइम नहीं था अपने पास, तो थ्योरी लास्ट में ही करी थी, बट दिस टाइम आई इंश्योर कि भाई थ्योरी भी करके जानी है, मुझे छोड़ना नहीं है। या तो मतलब एटलीस्ट आई वाज एमिंग फॉर एग्जामिशन, कि मेरे को एग्जामिशन तो पक्का ही चाहिए एसएफएम इस बार, बट विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी पैनिक, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बट एग्जामिशन चाहिए, राइट। तो ये सब था मेरा स्टार्ट। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में कि जैसे मैं सुबह शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 बजे के आसपास उठ गई थी, थोड़ा सा स्लीप तो हल्का सा करता है, तो उसमें फिर मैंने किया था कि मैं
सर की मैराथन 2x वाली स्पीड पे चला के आई जस्ट गो थ्रू कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बोला कि भाई ये देख लेना कि मैं वो मिस आउट तो नहीं कर दिया मैंने, तो आई जस्ट इंश्योर कि वो सब हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरी सारी स्ट्रैटेजी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन ऑफ कंप्लीट और सारे चैप्टर्स, सर की मैराथन से मैं लास्ट में देख के जाऊँ कि मैराथन में उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बोले हैं और वो सब, और थर्डली कि मेरी थ्योरी भी पूरी अच्छे से हो, एंड मैं बिल्कुल एकदम काम मैनर में गई थी फिर अपने एग्जाम हॉल में भी। लाइक इनफैक्ट आई रिमेंबर कि एग्जाम से पहले हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं ना एग्जाम सेंटर पे, तो मैंने कर दिया था, बुक क्लोज कर दी थी। और एंड ऑल्सो वन मोर थिंग वाज कि सर ने बोला था फॉरेक्स चैप्टर ना बहुत बड़ा होता है, आप मतलब इट टेक्स योर सो मच टाइम कि आप 3 साल नहीं लेते हैं। हाँ, तो मैंने बस क्या किया था कि फॉरेक्स चैप्टर में सर ने बोला ये कॉन्सेप्ट कर लो, क्योंकि फॉरेक्स चैप्टर मैंने फर्स्ट डिवीजन में बहुत अच्छे से किया था, तो ऐसा ठीक है अपने उस टाइम पे तो कर लेंगे, और जो जो मतलब इंपॉर्टेंट सर ने बोला है कि ये टॉपिक कर लो, एक बार वो गो थ्रू कर लो एंड लेट्स लीव इट, ठीक है एग्जाम्शन चाहिए उससे मतलब वो कर लेंगे, हो जाएगा मैनेज। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मतलब आई डिड नॉट एम फॉर कि 80+ चाहिए या एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड एग्जाम्शन चाहिए एंड बस जस्ट गो थ्रू विद अ वेरी रिलैक्स एंड काम माइंड। एंजाइटी इस बार मेरे को नहीं चाहिए, जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो नहीं चाहिए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा निकी आपसे इसके रिगार्डिंग कि आपने 1.5 डेज में कोई क्वेश्चन को लिख के ट्राई किया था या सब उसमें ऊपर देखा ही था, सिर्फ ऊपर से ऑडिट ही किया था, लेकिन करना वाज नॉट फीजिबल एट ऑल, मतलब क्योंकि लिख के नहीं हो सकता था। 1.5 डेज वेरी लेस टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा था कि अगर मतलब जो होता है ना कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फिगर्स आप लिख लेते हो फटाफट, ठीक है, तो बस हल्का बहुत अगर वो किया हो तो वैसा था, और लिख के तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा था, ऑडिट ही किया था। ऑल्सो जैसे मैंने ना ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, मतलब जब एग्जाम हॉल में एंटर कर लिया था, बैठे थे, ठीक है, तो लाइक एग्जाम 2 बजे से स्टार्ट होता है, राइट, तो 15 मिनट रीडिंग टाइम उससे पहले, और उससे पहले आप बैठ गए लाइक 1:30 अगर आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, तो मैं खाली बैठी हुई थी। तो व्हाट आई इंश्योर्ड वाज कि मैं फॉर्मूलाज जो एक आध थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला अगर मैं भूल जाऊंगी इस फॉर्मूले को, तो आई जस्ट मतलब मैंने उसको ना ऐसे हल्का सा बहुत छोटा सा कहीं लिख दिया, ठीक है, बेंच पे लिख दिया, या एटलीस्ट कहीं भी बहुत बहुत लाइक एक होता है ना कि आप माइक्रोस्कोप से देखो और एनीथिंग, वैसा लिख दिया, है ना। एंड या फिर जैसे किट थी मेरे पास नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर हल्का हल्का लिख दिया वैसा कि ठीक है ये फॉर्मूला भूल सकती हूँ, बट मेरे को लगता है कि ठीक है। तो जब हमारा क्वेश्चन पेपर भी आया 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में भी, मैंने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में उस क्वेश्चन पेपर पे भी मेरे को लग रहा था मैं फॉर्मूला भूल जाऊंगी, मैंने उस पे भी लिख दिया, क्योंकि मैंने ये सारी मिस्टेक करी थी ना नवंबर में, तो आई जस्ट इंश्योर्ड कि भाई इस टाइम में ऐसा कुछ ना करूं। जो फॉर्मूला याद है उसको जॉट डाउन कर लो, अगर भूलने का 1% भी चांस है इस फॉर्मूला। या क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पेपर पढ़ते हो तो आपको स्ट्राइक करता है, और जब आप पेपर मतलब एक्चुअली में लिखने जाते हो ना, तो कुछ चीजें थोड़ा भूलने लग जाते हो, ये याद नहीं आती ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू टाइम वाला स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपने मेरे को बहुत अच्छा एक एग्जाम हैक दे दिया यहाँ पे। एग्जैक्टली, या तो वो मैंने छोटा लिख दिया था अपने पेपर पे, एंड मतलब ये बोलते हैं कि भाई पेपर जो इन्विजिलेटर होता है वो बोलता है कि क्या कहते हैं मत लिखो क्वेश्चन पेपर पे और एनीथिंग, बट यू हैव टू इंश्योर कि भाई तुम उस चीज को कैसे मतलब करोगे, एक बार ही देख लो अपने हिसाब से। मतलब हमें भी बोला था उन्होंने कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखो, बट आई लाइक पेंसिल से लिख दिया मैंने, अगर वो बोलेंगे या कुछ चेक करना है तो मैं मिटा दूंगी, पेन से नहीं लिखा था, पेंसिल से लिख दिया था, और बहुत छोटा जस्ट कि मुझे समझ आ जाए एटलीस्ट बाद में, तो हो सकता। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ आपने फॉर्मूला बुक भी बनाया था कि फॉर एएफएम? नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला बुक रेफर नहीं की थी, ना मैंने कोई फॉर्मूला बुक खुद से बनाई। अगर कोई एक ऐसा था कि ओके दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लास्ट डे रिविजन, तो बुक का जो फ्रंट पेज होता है उस पे बस लिख दिया वो फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मली लिख दिया, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने अलग से उस टाइम पे ऐसा था कि यार ठीक है, या फिर मार्क कर दिया लाइक कि स्टिकी नोट या वो फ्लैग्स होता है ना वो लगा दिया, बट ऐसे अलग से नहीं बनाया। तो लास्ट में आपको पूछना चाहूंगा कि एएफएम का वो 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है, और फिर आपका वो एग्जाम सिचुएशन 3 घंटा का, वो थोड़ा डिस्क्राइब करिए कैसा रहा, आपने कैसे रीड किया था क्वेश्चन पेपर को। और राइट, तो 15 मिनट्स वाला तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे जैसे मैं रीड कर रही थी, मतलब और मुझे ना एक्चुअली क्वेश्चन समझ आ गए थे कि यार ये भी देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, मुझे क्वेश्चन पेपर समझ के आ रहा था कि भाई ये बहुत ईजी है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, बट मैंने अपने आप को ना काम रखा कि भाई ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ नहीं करनी है, तो ये मैंने किया। एंड वो जो मैंने पॉइंट्स बताए कि मैंने लिख दिया था ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, व्हाट हैपेंड ना, एक तो 30 नंबर के हमारे एमसीक्यूज भी हो गए हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब आई फॉलोड कि पहले मैं 3 क्वेश्चन कर लूँ, फिर एमसीक्यूज उठाऊं, और फिर उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चंस कर लें। 2 होता है, 1 क्वेश्चन होता है, 1 सेकंड, आई गेस 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 4 कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन
नहीं 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। 14 या हाँ 6 क्वेश्चन या 14 एग्जैक्ट राइट। तो कि 3 क्वेश्चन पहले कर लिए, फिर एमसीक्यू उठाया और फिर सेकंड बाकी 2 क्वेश्चन कर लिए। तो एग्जाम टाइम में मतलब पेपर इतना, आई एम टेलिंग यू, 1 घंटे में मैंने तीनों क्वेश्चन डन कर दिए, एमसीक्यू एक उठाया। घंटे के अंदर? एग्जैक्टली यस, दैट हैपेंड एक्चुअली, मतलब आई वाज आल्सो शॉक्ड। तो मतलब 3 घंटे, मेरे को तो लगता है कि आपने 3 घंटे से पहले ही पूरा पेपर 100 मार्क्स का खत्म कर दिया हो। राइट, मतलब क्या हुआ था कि मैंने 2.5 घंटे में पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है ओह माय गॉड। पेपर, राइट, मतलब हम्म। 5 क्वेश्चंस। और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन वही ऑप्शनल वाला छूटा हुआ था, तो आई वाज सिटिंग वेरी आइडल एंड आई वाज लाइक यार लोग सोचेंगे इस बंदी का पेपर जल्दी खत्म हो गया, इसको सब आता था या क्या हुआ, मतलब ऐसा। तो एंड इसकी भाई मैं बैठे बैठे क्या करूं, ठीक है। तो आई वाज लाइक चलो, मेरे को वो जो 6 क्वेश्चन था ना वो एक्चुअली में नहीं आता था, मतलब उसमें था कि एक पार्ट आता था और एक पार्ट नहीं आता था। तो था कि यार ये तो पक्का गलती होगा मेरा, बट ठीक है, खाली बैठे हैं, कुछ करना है कर दो, वो क्वेश्चन भी कर दो। तो मैंने वो तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया। भाई साहब, मतलब पूरा का पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन भी इस बंदी ने पूरा लिख के आ गई, मतलब कि अब इसमें शायद अब जिसको पता नहीं होगा, बट आप चाहें तो एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपको जो बेस्ट ऑफ 5 होगा वही आपको मार्क्स एक्चुअली में एग्जामिनर काउंट करता है। तो यस एग्जैक्टली निकी ने भी इतना एक बैठा था, खाली बैठे थे, पेपर खत्म हो गया तो ऑप्शनल अटेम्प्ट राइट। और ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं बच्चे, उनको लगता है कि पहले 5 क्वेश्चन ही लेते हैं आपके या एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है। मतलब 6 में से आपके बेस्ट 5 के नंबर जोड़ते हैं। तो मैं खाली बैठी हूँ तो मैंने तो कर दिया कि बस अब ठीक है। एंड फिर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ एग्जाम हॉल आई न्यू कि भाई पेपर तो अच्छा गया, नो डाउट, राइट। तो फिर मैंने उसको बोला, मतलब अब ऐसे खुद से अपने आप को कि ठीक है, डिस्कस नहीं करना है अभी भी, एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है, कुछ नहीं करना। बट मुझे ऐसा था कि 80 प्लस तो आ सकता है बॉस, अगर सब कुछ, मतलब मैंने कोई सिली मिस्टेक ना की हो या और एनीथिंग, तो 80 प्लस तो आ जाएंगे। बट 90s वाला मेरे लिए था कि नहीं उतना तो, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, और ऑल्सो एग्जाम में हॉल में मेरे ना हमारे 2 क्वेश्चन एसएफएम में गलत आए थे, एमसीक्यूज में ना 2 क्वेश्चंस का सॉल्व ही नहीं हो रहा था। कि वो क्वेश्चन में देख रही हूँ भाई ये हो ही नहीं रहा, इसका आंसर ही नहीं एमसीक्यूज में जो मेरा निकल रहा है, और मैं तो बस ऐसे मैंने कहा ठीक है, मुझे 4 नंबर है, ठीक है देख लेंगे, तो वैसा। तो ये भी था एक सीन। तो जब रिजल्ट्स आया और रिजल्ट्स में 92 देखा एएफएम में, तो कैसा फीलिंग था वो? इट वाज द बेस्ट फीलिंग। एंड मैं एक चीज बताती हूँ व्हाट हैपेंड। एंड मैंने अपने लाइक आफ्टर 1 और 2 आवर जब रिजल्ट आ गया था, देख लिया था, तो मैंने अपना प्रीवियस मार्कशीट देखी एंड आई सॉ दैट आई स्कोर 29 लास्ट टाइम एंड इट टर्न्ड इनटू 92 एंड आई वेंट क्रेजी। उस टाइम पे एक्चुअली आई क्राइड। मतलब होता है ना कि जो इमोशनल मेरा मोमेंट था ना वो उस टाइम पे था, एंड लिटरली दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। क्योंकि जब ऐसा होता था ना, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू लाइक सी और प्रिपेयर, तो मुझे ऐसा होता था क्या मैं इस नंबर को टर्न कर सकती हूँ क्या। बट हमेशा ऐसा होता था निक्की प्रैक्टिकल रहो, आपके लिए एग्जामिशन भी बहुत है, बिकॉज यू जस्ट गॉट फेल्ड इन एसएफएम, राइट, लोएस्ट स्कोर एवर। तो ये था कि भाई ठीक है, अभी 60 प्लस भी आ जाएंगे, दैट विल आल्सो बी मतलब गुड थिंग। बट 29 से एग्जैक्ट 92 आना वाज सच में अ मिरेकल फॉर मी। मतलब आई कुड हैव नेवर लाइक आस्क्ड फॉर मोर, वैसा था। तो अगर मेरे 94 आते या एनीथिंग ना, तो उसमें ऐसा नहीं लगता भाई कि यू नो 94 आया, ठीक है, ज्यादा ही आया इनफैक्ट, बट टर्न नहीं हुआ ना नंबर। ये बात सही। एग्जैक्टली। तो जैसा कि नितिन ने अपना पूरा एएफएम का भी स्ट्रेटजी शेयर की, तो मैं जस्ट एक ट्रिक्स इनका बता देता हूँ कि इन्होंने क्या टिप्स दिया है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप जिस टीचर को कोई टीचर फिक्स कर लो कि मेरे को इस टीचर को फॉलो करना है, उनके मटेरियल्स आपने एक फिक्स कर लिया, तो उसके टीचर को ट्रस्ट करो और अपने उनके नोट्स वगैरह पे कॉन्फिडेंट रहो कि मेरे को इसी से लास्ट तक कंटिन्यू करना है। सेकंड थिंग कि अपने रिविजन अच्छे से करो, एक मॉक टेस्ट दो अपने आप को, सेकंड और थर्ड रिविजन के बीच में अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो। एंड थर्ड चीज जो इन्होंने बोली है कि जैसे 1.5 डेज की एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसमें आपको अच्छे से करना है सब कुछ। और लास्ट में इन्होंने जो एक एग्जाम हॉल की टिप्स दी कि वो आप एक एग्जाम हॉल में एक हैक यूज कर सकते हो, पेंसिल से आप कहीं पे भी ऐसा लिख लो अपने फॉर्मूला जो आपको लगता है कि आप पूछ सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, तो उसको रिकॉल करने के लिए आप उसको एक इस हैक को यूज कर सकते हो। एंड फिर एग्जाम जैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया वो 3 घंटा का, वो आपको इन्होंने खुद बताया है इतने अच्छे से। तो ये इनकी पूरी एएफएम की कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी। तो हमने निकी से इसकी एएफएम की स्ट्रेटेजी के बारे में जाना, बट मैं बता दूं कि इन May 24 एग्जाम्स सिर्फ एएफएम ही नहीं, उन्होंने एफआर में भी 68 स्कोर किया था, व्हिच इज क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में लाना। दैट्स आल्सो ए वेरी रिमार्केबल थिंग, क्योंकि एफआर में इस बार बहुत सारे लोग थे जिनका पेपर अच्छा गया बट उस वैसा नंबर उनको मार्क्स नहीं आया। तो फिर निकी ने बहुत, मतलब कि उनका पेपर भी अच्छा गया एंड डेफिनेटली उनको मार्क्स भी 68 इज अ रियली गुड मार्क्स इन एफआर। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इन शॉर्ट अगर वो डिस्क्राइब करे कि उन्होंने एफआर के लिए कैसी स्ट्रेटेजी उनकी थी। ओके, सो एफआर में भी सेम तरह से आई अप्लाइड
दो, बट एफआर में मतलब मैंने सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं किए थे, मेजरली मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे विच आई फाउंड मतलब थोड़ा टफ, या फिर कैलकुलेटर से हो जाता था एफआर में, तो वैसा। ऑल्सो एफआर में मतलब लाइक रिजल्ट जब मैं पेपर दे के आई थी May 24 का, तो आई एक्सपेक्टेड समवेयर अराउंड कि मेरे 70s में आ जाएंगे नंबर, तो ये भी अच्छा था कि पेपर भी अच्छा है, बट एमसीक्यूज वर वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एक होता है ना कि या मुझे ऐसा लगा था कि एफआर में मुझे प्रैक्टिकल में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना एमसीक्यूज में हुआ था। इट आई रियली फाउंड देम चैलेंजिंग, बहुत कि थोड़ा टफर साइड में, बट ये था कि जैसे मैंने रिव्यूज देखे थे बाद में, तो वो बोल रहे थे कि एमसीक्यूज अगर आप मतलब छोटे छोटे इंडेक्स वगैरह करते यार तो उसमें हो जाता, बट एफआर में क्या था कि छोटे वाले जो इंडेक्स होता है ना, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, मतलब अच्छा तो अगर मैं उनको भी और जितना मैंने फोकस किया उससे थोड़ा और करती, तो आई गेस इससे भी ज़्यादा बेटर स्कोर भी हो सकता था, इम्प्रूव हो सकता था, बट आई एम सेटिस्फाइड कि भाई 68 भी आया है, तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा एक्चुअली में एग्जामिशन हो गया, एंड जो एटलीस्ट मेरे टारगेट्स थे कि मुझे दोनों में एग्जामिशन चाहिए, मेरा फुलफिल हुआ वो। तो जैसे निकी ने अभी कहा कि एफआर में उनके प्रैक्टिकल पार्ट वाज रिलेटिवली इजियर और एमसीक्यूज थोड़े टफ थे, बट एमसीक्यूज के लिए वो यही रिकमेंड करेंगे कि जो भी स्मॉल स्मॉल इंडियाज है उनको नेग्लेक्ट ना करें, उनको अच्छे से देखें, क्योंकि एमसीक्यूज उसी से फॉर्म होती है। निकी, सिर्फ मैं एफआर के लिए एक और चीज पूछना चाहूंगा कि किस फैकल्टी को आपने फॉलो किया था एफआर के ये गाइडेंस के लिए, रिविजन के लिए, क्या नोट्स वगैरह क्या फॉलो किए थे आपने एफआर? सेम अजय सर को मैंने फॉलो किया था, अजय लगता है अग्रवाल अजय सर को आपने दिल दे दिया है अपना। सर। नहीं, एक्चुअली ही इज अ ग्रेट मेंटर, मतलब मेरे को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत बहुत अच्छे से मतलब ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, तो बहुत ही जैसे हमें चाहिए होता है कि ऐसे आप लेमन वर्ड्स में बताओ एंड वो सब, तो उस सेंस में। तो बहुत ऑल्सो आई ऑल्सो रेफर्ड सम, मतलब जैसे स्मॉल इंडियाज के लिए आकाश कंदोई सर को, ही इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब अगर मैं इफ कोई मुझसे पूछे कि अगर अजय अग्रवाल सर नहीं होते तो विच फैकल्टी यू वुड हैव रेफर्ड नेक्स्ट, तो मैं फॉर श्योर आकाश कंदोई सर को रेफर करती। लाइक मुझे उनके बारे में एक्चुअली में लेट पता चला था, दो इज मतलब एसोसिएटेड विद वैसा, या फिर लेट एज इन मैंने उनको लेट फॉलो करना स्टार्ट किया था, बट ही इज ऑल्सो टू ग्रेट वैसा। सीरियसली मैं भी आकाश कंदोई सर को काफी पसंद करता हूँ। बेसिकली उनका जो स्टाइल है बोलने का, एंड वो इतना कैजुअल वे में पढ़ाते हैं, लगता है नहीं मतलब कि आप एक एग्जाम मतलब कि एक आपको जब लगता है आप पढ़ाई करते हैं तो एक काफी सीरियस माहौल में एक स्टूडेंट सोचता है कि काफी सीरियस माहौल होगा, काफी डिटेल्ड में ये चीज होगी, तो वो इतना फन वे में पढ़ा देते हैं कि लगता है कि पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और मजा भी आ गया पढ़ के, ऐसा फील होता है उनके क्लासेस का एक्सपीरियंस में। इनफैक्ट उनका वो जो डायलॉग है, भाई आया है सब करा के जाएगा, दैट इज मतलब सो ऑसम ऑनेस्टली, तो वो बहुत सही लगता है, मतलब एक अलग ही एंथुसियाज्म आता है, मतलब एंथुसियाज्म आता है कि एनर्जी आ जाती है पूरा कि भाई आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप रो रो के पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, तो वो रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये निकी, ये बहुत टफ जर्नी होती है, 6 साल आप एक कोर्स में देते हो, कई ऐसे मोमेंट्स रहते हैं तो आपको बहुत ये लगता है कि यार फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाती है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते या फैमिली मेंबर्स का आर्टिकलशिप के टाइम में भी कभी कभी टफ टाइम हो जाता है, तो प्रिंसिपल ने कभी डांट दिया या ऐसे करके, तो अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करती थी, मोटिवेट कैसे करती थी, रिफ्रेशमेंट्स के लिए क्या करती थी? तो सो रिफ्रेशमेंट्स के लिए ऑलवेज आई यूज्ड टू गो टू माय फ्रेंड्स, मतलब मेरे दो मेन फ्रेंड्स थे ड्यूरिंग माय जर्नी, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनली फाउंडेशन से, एंड दो इनफैक्ट दो नहीं बोलूंगी, 4 मेन फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो लाइक वी वर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, तो उन मतलब ऐसा होता है ना कि एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बना रहता है, और सेकेंडली अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको रहता है एकदम अच्छे से, ठीक है, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टाइम ऑल्सो, जब मुझे इंडस्ट्रियल के लिए ट्रांसफर लेना था फॉर एग्जाम्पल, तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली थोड़ा कर होता है कि मतलब अप्रूवल नहीं दे रहे और एनीथिंग, तो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं उनके पास ग्रब करती थी कि भाई अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है, और मतलब आई यूज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम देम, आई यूज्ड टू मतलब दे वर लाइक रियल मोटिवेटर एंड रियल लाइफ मेंटर इन पर्सन, एंड उन लोगों से मैंने इतना सीखा है ना, मतलब अपने फ्रेंड से ही, कि आई लाइक दे ट्रांसफॉर्म मी ऑनेस्टली, और अगर वो लोग नहीं होते तो आई डोंट नो कि मैं इस जर्नी को कैसे क्रॉस करती। ऑल्सो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ऑल्सो, मतलब आर्टिकलशिप वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें भी यू गेट फाइंड पीपल एंड यू फाइंड फ्रेंड्स, तो वो सब भी पूरा एक मतलब रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका भी, तो इफ यू फाइंड गुड फ्रेंड्स ना, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड ऑनेस्टली, लाइक ऐसा होता है। तो ये काफी लंबा जर्नी रहता है, तो इसमें आपका अगर आप बात किया जाए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम, एक लाइफलाइन की भी जरूरी रहती है कि आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स काफी आपके पीछे रहें, आपके सपोर्ट में रहें कि यार कुछ नहीं, कभी कभार अटेम्प्ट एक आध लग जाता है तो कोई बात नहीं यार, बेटा होता है, ऐसे नहीं, तो फिर आप कुछ लोग जिसको आप मेंशन करना चाहें, उनको क्रेडिट देना चाहें कि इस जर्नी में उनका काफी
अच्छा सपोर्ट रहा है आपको, तो वो कौन थे? Yeah. So, two of my main persons are, both are my sisters. One is my real sister and one is the one जिनको मैं पीजी में मिली थी, मतलब अच्छा। जहाँ पे मैं रहती स्टे करती थी वहाँ पे वो मुझे मिली थी. I don't know कि if I should be taking names or not, but No, you वो can take दोनों her names. yeah, They also be feeling happy seeing you taking their names and लाइक वो दोनों सीए नहीं कर रही, मेरी दोनों मतलब सिस्टर्स हैं, वो सीए नहीं कर रही. लाइक मेरी बड़ी बहन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर बैंकिंग एग्जाम्स एंड स्टिल शी यूज्ड टू सपोर्ट एंड इनफैक्ट दोनों ही बैंकिंग के लिए मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रही थी. एंड स्टिल आफ्टर ऑल ऑफ दैट दोनों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया. एंड जिनके पास मैं रहती थी, हर नेम इज रोमा एंड जो मेरी रियल सिस्टर है शी इज लवली. सो इन दोनों ने मतलब बहुत मतलब एवरी टाइम जो एक होता है ना कि सिंगर लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको किसके पास जाना है, मैं उन लोगों के पास जाती थी. एंड टू ऑफ माय फ्रेंड्स they are in the CA, one of them is a CA already and one is doing CA. So वो दोनों are also मतलब they mean so much to me अभी भी. मतलब I cannot describe this honestly speaking कि उन लोगों का support नहीं होता तो I don't know, क्योंकि मेरी family was here like in my hometown, but जो मेरे साथ में थे उस टाइम पे दिल्ली में, जो मैं दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में जो मेरे साथ थे वो यही सारे लोग थे. एंड छोटी से छोटी चीजें आप ऐसा कुछ चीजें ऐसे होती है जो आप घर वालों को नहीं बता सकते एंड यू टेल टू योर फ्रेंड्स और योर सिस्टर एंड वैसा, तो वो सब, तो दैट वाज अमेजिंग. आई मस्ट से कि आपकी आंखों से मतलब जब आप उनके बारे में बातें कर रही थी अभी, तो आपकी आंखों से पता चल रहा था मेरे को कि व्हाट these guys mean to you. मतलब कि काफी ये लगा कि मतलब भावुक टाइप का मेरे को लगा कि आप फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू हुई है. मतलब कि that also tells you कि कितने स्पेशल है ये 4-5 लोग आपकी लाइफ में. दैट्स ट्रू. मतलब मैं एक्चुअली इफ आई वुड हैव सेड सम लाइक कुछ और थोड़ा देर बोलती ना तो मतलब सच में मैं ऐसा हो सकता था कि रो जाती ऐसा. तो निकी, मैं एक कुछ आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सीए, सबसे पहले ये बताइए कि सीए के अलावा कोई और इंटरेस्ट की मतलब बुक्स से, सीए में तो आपको पता है कि वी आर यूज्ड टू सिट विद बुक्स फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट और कोई लाइफ का इंटरेस्ट जो जैसे अच्छा लगता हो करने में? That is also books, I would say. Like I like to read books, novels and in fact जो biographies होती है या फिर self help books like those. Fictional भी to some extent, but I've read self help books the most. And also dancing. मतलब I used to dance a lot when I was in school. मतलब हमेशा like एक होता है ना कि सबसे आगे बच्चा रहता है, तो that was me dancing में हमेशा. I used to dance a lot. But CAs के टाइम पे क्या होता है कि कुछ आदतें थोड़ा छोड़नी पड़ जाती है, बट स्टिल आई ट्राइड कि थोड़ा वो कंटिन्यू रखे, बट फिर भी एंड आई थिंक अब आप परस्यू कर सकती हो वापस डांसिंग वगैरह करना, हो सीए बन गई हो यार, यू कैन ट्राई. ट्रू मतलब आई वांट कि ऐसे मैं जाऊँ वर्कशॉप्स एंड ऑल में ज्वाइन करूँ और वहाँ पे या लाइक दैट. और आपने बुक्स के बारे में बात की, तो एक ऐसे ही मैं जस्ट रैंडमली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई एक ऐसा बुक जो आपने पढ़ी हो और आप उसको रिकमेंड करनी चाहोगे कि सबको वो बुक पढ़नी चाहिए? That would be a self-help book only, which is the 5 AM Club. अच्छा. मतलब मैं उसमें अभी नहीं आ रही हूँ राइट. मतलब the 5 AM Club is basically 5 बजे उठ के आप कुछ सर्टेन चीजें करो उसमें जो जो बताइए और that would lead you to success in life. गुड लाइफ. राइट. तो मैंने वो बीच में फॉलो भी किया था, बहुत बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप करते हो. हाँ, तो मैं लास्ट ये पूछना चाहूंगा आपसे कि निकी, आगे का क्या प्लान है? राइट. आगे के अभी तो वी आर करेंटली डूइंग जॉब हंटिंग. अच्छा, जॉब हंटिंग प्रोसेस भी चालू है, मतलब यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स. कैंपस के लिए भी आपने अप्लाई किया कि नहीं? हाँ, मैंने कैंपस के लिए एक्चुअली आज मतलब 24th इज द लास्ट डेट, 24 जुलाई, तो कैंपस के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया एंड यस आई एम इन द प्रोसेस ऑफ जॉब हंटिंग एज वेल. फिर उसके बाद अभी 1 by 1 बेसिकली इज लाइक दैट, तो वो देखता है. तो लास्ट में मैं कुछ फाइनल वर्ड्स चाहूंगा आपसे निकी कि जो भी एस्पिरेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए आप कुछ अगर ऐसे ही आप 2 लाइन 3 लाइन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि किस हिसाब से उनको अपने आप को कैरी करना चाहिए इस जर्नी में? जस्ट मेरे हिसाब से होता है कि मेक अप योर माइंड. इफ योर माइंड इज क्लियर ना, मतलब इफ यू आर क्लियर अपना आपको अपने दिमाग में पता है कि आपको ये चीज करनी है, तो मैंने मतलब लिखा भी था जो एक्चुअली में एक लाइन है ना कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज में मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तो एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू. मतलब ये मेरे साथ हुआ है एंड आई कांट बी यू नो मच ग्रेटफुल वैसे इससे कि इससे ज्यादा आई डोंट नो क्या अच्छा हो सकता था लाइक वैसा. तो अगर आपको कुछ चीज चाहिए, आपको कुछ चीज करना है, लाइक यू वांट टू बिकम अ सीए, उस सीए इज टफ. मतलब सीए इज टफ बिकॉज
demands from you a lot, sacrifices बहुत मांगती है, मतलब I have done sacrifices personally a lot, तो वैसा, तो it's not easy, but ऐसा भी नहीं है कि अगर आप करते जाओगे तो ये होगा नहीं, तो बस मन बना लो तो मंजिल दूर नहीं, वो वाला डायलॉग, it's just like that. तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स और मैं निकी को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस टाइम का, जब वो जॉब हंटिंग प्रोसेस वगैरह में लगी हैं, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर कैंपस, तो उन्होंने एक वैल्यूएबल टाइम अपना निकाला एंड इस इंटरव्यू के लिए टू गाइड अस, टू मोटिवेट अस, टू शेयर हर जर्नी। एंड काफ़ी मैं पर्टिकुलरली मेरे को लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स भी इस वीडियो को देख के इंस्पायर होंगे आपसे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। Thank you so much, Keshav, and thank you so much for providing me the platform कि मैं अपने emotions express कर पाऊँ and मैं अपनी journey बता पाऊँ. That means a lot, honestly. So thank you so much for that. It was my pleasure. So सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कि इंटरव्यू तो खत्म हो गया, बट मैं और भी इंटरव्यूज़ ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट एज सून एज पॉसिबल ऑन दिस चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड इससे आप अपडेटेड होगे व्हेनेवर आई ब्रिंग समथिंग फ्रेश। सो टू लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।